Hello, good morning, student. Today we will start chapter 3, part 3, Yarn to Fabric. There are many ways by which fabric are made from yarn. The two main process are weaving and knitting. ये जो फैब्रिक जो है वो यान में से बनता है और उसकी टू मेन process है weaving and knitting. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two set of yarn arranged together. The process of arranging two set of yarn together to make a fabric is called weaving. The process of arranging two set of yarn together to make a fabric is called weaving. ये जो प्रोसेस है यान टुगेदर यान को अरेंज करने की जो प्रोसेस है और जो फैब्रिक बनाया जाता है उसको वीविंग कहते हैं. लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्राइप. तो इसके रिलेटेड हम कागज़ के कुछ स्ट्राइप लेकर उसके प्रोसेस करते हैं. टेक टू शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स. दो डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग शीट पेपर लो. कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ and width equal to 30 cm from each sheet. Now fold both the sheet into half. On the sheet, draw lines as shown in the figure 3.12 जो आपको यहाँ फिगर में दिखाई देता है. And on the other as shown in figure 3.12b जो यहाँ आपको स्ट्राइप्स है वो दिखाई देती है. कट बोथ द शीट्स along the dotted line and then unfold weave the stripes one by one and through the cut in the sheet of paper as shown in 3.12 C and D जो यहाँ फिगर में आपको दिखाई देता है कि किस तरह से स्ट्राइप जो है उसको फोल्ड करते हैं जो फिगर में दिखाई देता है. Now, in a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric, and the yarn are much thinner than our paper stripes. Of course, weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operation. तो ये जो यान है वो किस तरह से कागज़ के स्ट्राइप की तरह वो बहुत ही थिन पेपर होता है और उसके ऊपर जो फैब्रिक है वो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स. उसको लूम्स कहते हैं. द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेट. वो जो है वो हाथ से भी चलता है और इलेक्ट्रिक से भी चलता है. नाउ नीटिंग. हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड. क्या आप जानते हो स्वेटर को किस तरह से बनाया जाता है. इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. फिगर 3.14 आपको यहाँ फिगर में दिया जाता है और देखो किस तरह से नीटिंग की प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यूस एक धागे में से वो निकलता जाता है. हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स. आपने जो आपके जो सॉक्स है उसमें से यार्न जो है वो किस तरह से पुल्ड खींचते हुए देखा है. व्हाट हैपन्स अगर आप वो खींचते हो तो क्या होता है. अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड out continuously as the fabric
get untraveled. Sock and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. या तो वो हाथ से या तो फिर मशीन से knitting किया जाता है. Now repeat, knitting is done by hand and also on machines. Paheli want to know if you have seen any fabric that are made of the fibrous on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? ये मोस्टली किस में यूज होता है? Weaving and knitting are used for making different kind of fabric. These fabric are used for a variety clothes item. ये different types के जो variety of clothes है उसमें वो use होता है. Now history of clothing material. Have you ever wondered what material people use in ancient time for clothes? पहले के ज़माने में किस तरह से लोग कपड़े का यूज़ करते थे? It appears that in those time people used the bark and big leaf of trees or animal skin and fur to cover themselves. Now repeat. In those times, people used the bark and big leaves of trees और एनिमल स्किन एंड फर टू कवर themselves. उस वक्त लोग ट्रीज की जो स्किन थी उसका उसके जो लीव्स थे और एनिमल्स की जो स्किन थी उसका इवन उसके ऊपर जो एनिमल की जो फर होती है एनिमल्स की फर FURS फर्स जो होते हैं उसको अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ करते थे. आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव twigs and grass into mats and basket. Vines, animal, fleece of hair were twisted together into long strand. उस वक्त जो नीटिंग करने के बाद जो ग्रास तो एक दूसरे के ऊपर वो क्या करते थे? ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड. और वो बनाने के बाद दीज वेर वोवन इनटू फैब्रिक्स. द अर्ली इंडियन वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट grew in the region near the river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. उस वक्त जो नाइल रिवर है उसके नज़दीक में ही कॉटन और फ्लैक्स जो है वो कल्टीवेट किया जाता था और उसका यूज़ फैब्रिक्स बनाने में होता था. इन दोज डे स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. उस वक्त लोग स्टिचिंग के बारे में नहीं जानते थे. पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी. मैनी डिफरेंट वे of draping fabric were used. With the invention of sewing needle, people started stitching fabric to make clothes. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabric to make clothes. Stitch clothes have gone through many variations since this invention, but it is not amazing that even today साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन is used
अस अन अनस्टिचेस पीस ऑफ फैब्रिक। इसको स्टिच किए बिना इनका यूज होता है। नाउ रिपीट। साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन, इट इज यूज एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो टुकड़ों में इसका यूज होता है। जस्ट as there is a large variety in the food eaten all over country। तो इस तरह से पूरे देश में डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी फूड आइटम हमें देखने को मिलती है। अ लार्ज वैरायटी एग्जिट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में ये फैब्रिक और क्लोथ्स आइटम है उसका यूज होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर? थैंक यू।